तोड़े मौलवी ये काम पांदे जे सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं। Madrasas, as we know, calling Urdu a gad means a real. आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे, पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। पाकिस्तान के अंदर मसाजिद में और मदरसों के अंदर अल्लाह के कुरान को पढ़ने के लिए एक हाफिज़ को किस जुल्म सितम से गुज़रना पड़ता है। दोस्तों, इस रिसर्च के हिसाब से, इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक दिन के अंदर 82 यानी कि 80 के करीब बच्चे जो हाफिज़ बनते हैं उन बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, बदफेली होती है। 80 के करीब एक दिन के अंदर, ज़रा सोचिएगा। The headmaster came to the madrasa. He said he wanted to take me to clean his house. I got onto his motorbike and we left. He came into the room, shut the door and started to assault me. He pulled down his trousers and took mine off by force. Then he did horrible things to me. This testimony breaks the silence in a system where victims' voices are methodically suppressed. In Pakistan, more than 2.5 million children attend madrasas. A bedroom window was open. I looked inside and saw a boy lying on the floor. The teacher was on top of him, both of them naked. I've seen this sort of thing many times. The same teachers with different boys. I was very excited about studying at the madrasa, but on the first day, I was worried. The headmaster came to the madrasa. He said he wanted to take me to clean his house. I was studying. I got on behind him on his motorbike and we went to his house. There, he told me to go into a room and start cleaning. A few minutes later, he came in and locked the door. He grabbed me and threw me on the bed. He started assaulting me, then pulled down his trousers and forcibly removed mine. I started to scream, but he put his hand over my mouth. And he did horrible things to me. I couldn't stop crying. He wouldn't let me go. Then he threatened me, if you tell anyone, your teacher or your family, I'll kill you. It was open and I looked in. I saw a boy lying on the floor. The teacher was on top of him and they were both naked. I said nothing to anyone. I went back to my room without making a sound. I've seen this a lot. The same teachers with different boys. Once my teacher called me into his room and ordered me to massage his feet. I started to do it. He told me to massage higher and higher. So I went up his legs massaging him. Then he told me to hold his penis. I said no. He told me he was going to expel me. I'd worked really hard and I was afraid of having to repeat the year again, so I said okay, and he held out his penis to me. In the district of Kasur, a bereaved father could not get justice for his son. Muhammad Salim's son died on 21st of June 2023. Samar was 8 years old. He was thrown off the roof of his madrasa after being raped. This is my son, Samar Salim. When I saw him in hospital, blood was pouring from his mouth and ears. He was in no condition to speak or open his eyes. I can't bear to look at this photo. All I can think about is killing that cleric or killing myself. This is the monster, a stain on the name of Islamic scholars. Muhammad Salim is living a walking nightmare.
The death of his son was followed by divorce and separation from his 2 other children, whom he sent to live with his sister. He denounces the corruption of the police, who, he says, botched the investigation. He also questions the doctors, whom he suspects of falsifying the autopsy report. The investigator asked me for money. He said, "Your case will be handled. There will be no problem. Just give me 300,000 rupees." I don't even have 10 rupees. The culprit's relatives in the village threatened to kill me on the way to court and make it look like an accident if I kept fighting. Seeking justice has become extremely difficult. When I go to court, I have to go like a criminal, hiding my face, hoping that no one will see me, for fear that someone will recognize me, catch me, and kill me. I live with that fear. Muhammad Salim did not get justice. According to his lawyer, he finally accepted to sign an agreement with the accused, who was later released. In Pakistan, the courts drop charges against the accused if they obtain forgiveness from the victim or his family, a principle enshrined in Islamic law. I try to visit him at least once or twice a week. I talk to him. "My son, how are you? Where are you? Do you..." In 96. ये कौन सी डेट के हैं? कोई नए वाले? From the 2025. Look at this one. Let me see. हाँ बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में मौलवी को कत्ल किया। हाँ अच्छा, दिस इज द मौलवी वाला। तालागंग मदरसे के कारी के 14 साल तालिबा से ज्यादती। अगर उन्होंने कहीं लिखा है कि ये मदरसे में ही हो रहा था? That was not mentioned. Every year, the NGO publishes a report called Cruel Numbers. According to their data, around 8 cases are reported every day. But the organization estimates that the real numbers could be 10 times higher. And look, Cruel Numbers is what we monitor newspapers up to 80 to 85 daily, and we collect all the cases that come up in the newspapers of child sexual abuse, abduction, missing children, early marriages, pornography, prostitution, because all those are forms of sexual abuse. We put it onto an Excel sheet, and at the end of the year, we do a complete analysis. These cases will not include a number of other sexual abuse cases that can be reported, like oral, like touching, kissing, because these could never be proved. So the fact remains is that you will have many more cases. According to the NGO, at an institutional level, the greatest number of complaints are lodged against religious teachers or clergymen, more than against the police, Madrasas, as we know are what we call in Urdu a gad, means a real powerful hold, and where abuse is happening all the time. We know that. But it is very difficult to make a breakthrough there. In all the 70 years of Pakistan, the religious groups were very small and not influential, but we have let them grow and become more influential. And now they have a big sway. And people, I think all our governments are... I can't even go out. If I go out, I have to be accompanied by someone. Now they're going to come after me. They won't give up. We find Wahid's alleged attacker in the same madrasa where he was studying. We film him with a hidden camera. The cleric is still there, in direct contact with the students. Neither the government nor the network of Quranic schools to which the madrasa belongs has taken any steps to suspend him from his duties while an investigation is carried out. The matter seems to have been ignored, as if nothing had ever happened. वो किधर गए जी फ्रंटमैन? LGBT के ऊपर जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। ओए तुसी सारी चलाई हुई है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ।
सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम हैं जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं। किसी स्कूल के हॉस्टल में होता है वो छोटी चीज है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मदारिस में ये काम होना, सबसे बढ़कर मस्जिदों में होना, क्योंकि तुम ठेकेदार हो दीन के बने हुए। तुम्हें अब कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलो, क्योंकि तुम लोग फ्रंट मैन हो उन लोगों के, उन लोगों का झूठा दिफा करते हो कि जो कस्टोडियन है इन तमाम कामों के। मैंने आपको बताया 13 साल का बच्चा केपी में पहली दफा मस्जिद में गया, 12 साल और 11 महीने तक उसकी मां ने उसे घर में नमाज पढ़ाई है कि छोटी उम्र का बच्चा है। 13 साल का हुआ है, मां ने कहा कि पहला रमजान आया बच्चा, तूने नमाज अब मस्जिद में पढ़नी है, तू मर्द हो चुका है, मर्द के लिए घर में नमाज नहीं है। अगले दिन उसकी लाश रस्सी के साथ लटकी हुई मिली है। उस मां के दिल पे क्या गुजरी, वो कब्र क्या, वो मैदान हशर तक इस गम को नहीं भुला सकती। तुम लोगों के पास इसलिए बच्चे भेजे जाते हैं, कत्ल कर देते हैं ये। वो जिस बच्चे की फिर लाश मिली लटकी हुई, उसके साथ यही मुंह काला किया हुआ था, अभी तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। मस्जिद के इत्तिकाफ में आपको खबरें नहीं मिली इस रमजान में। फिर तांदनिया वाला जो वाकया हुआ है, और अब ये लाड़काना वाला वाकया सिंध के अंदर भी, यानी सारे सूबों में ये आपको वाकयात मिल रहे हैं। और ये ना समझें कि आज कुछ लोगों को हो गया, ये पहले भी था। पहले असल में मीडिया नहीं था, ये चीजें हाईलाइट नहीं होती थी और ये खबरें दबाई जाती थी, लेकिन अब खबरें चंद एक बाहर आती हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं 90% ज्यादा खबरें दब जाती हैं। लाड़काना के अंदर एक मौलाना साहब ने मस्जिद के मेहराब के अंदर एक बच्चे के साथ जबरदस्ती मुंह काला किया और उसकी वीडियो बनी हुई है। मुझे बताएं, मैं जो ये कहता था ना कि आम मुसलमान जो है ना, वो मैयत की चरपाई को ना अंधेरे में देख के डर जाता है। मैयत ना रखी हुई हो, सिर्फ चरपाई रखी हो, और मौलवी जो है खुदा से नहीं डरता। मुझे बताएं, आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने मस्जिद के अंदर ये सब कुछ किया। मैं ये देख रहा हूं कि एक गैर मुस्लिम जब ये देखेगा कि मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख ले। ये तो जिन लोगों के अपने बच्चे हैं ना, उनको इस तकलीफ का अंदाजा होगा। आम लोग तो सिर्फ इसे खबर के तौर पे देखते हैं। जो खुद बच्चों वाले हैं ना, उनसे पूछें, वो तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनेंगे। अब वो किधर गए जी फ्रंटमैन एलजीबीटी के ऊपर, जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है तो मौलवी ये काम पाने जे सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं। कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामी के इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामी के, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं। बहन बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है। कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बार तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया
इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है।